جب ہمارے آباء و اجداد نے یہ پاکستان بنایا تھا ان کا خواب تھا، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان دنیا کی سب سے طاقتور مضبوط قوم بنے گی۔ ان کے الفاظ یہ تھے لائف میگزین کو انٹرویو دیتے وقت کہ پاکستان will become the pivot of the world۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہم نے اپنے ملک کا کیا حال کر دیا ہے۔ قائد اعظم کی سوچ تھی کہ اس ملک میں پارلیمانی جمہوریت ہوگی، اور یہی بات محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی الیکشن کیمپین میں کی تھی۔ اس وقت کے ایک مطلق العنان آمر فیلڈ مارشل ایوب خان کے مقابلے میں جب وہ کھڑی تھی تو فاطمہ جناح بی بی نے یہی فرمایا تھا کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت مستقبل ہوگا، نظام مملکت پارلیمانی جمہوریت ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کا امور مملکت کیا ہوگا، آپ کا آئین کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا، 1400 سال پہلے اور آج بھی۔ لیکن میرے دوستو، ہم نے اپنے ملک میں جو پارلیمانی جمہوریت کی حالت کر دی ہے، میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی یہی اٹھایا، کہ ہمارے آج کی حکومت فارم 47 کی جو کل کی اپوزیشن تھی ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ پارلیمنٹری ساورنٹی ہونی چاہیے، پارلیمان ساورن ہے، پارلیمان با اختیار ہے۔ ہاں، ہم آپ کی اس بات سے متفق ہیں، پارلیمنٹری ساورنٹی ہونی چاہیے، وزیر اعظم کی عزت ہونی چاہیے، لیکن کل اگر بھٹو کو جیل میں ڈال کر پھانسی دینا غلط تھا تو آج عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کر 5 دن تک ان کے کمرے کی روشنیاں بند کر دینا کیسے صحیح ہو گیا؟ کل اگر میاں نواز شریف صاحب کو مرحوم مشرف صاحب کے دور میں ہتھکڑی لگا کے جہاز میں لے جانا یا ہتھکڑی ڈال کے جیل میں ڈالنا غلط تھا، تو آج ایک سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو کالر سے پکڑ کر ہائی کورٹ کے احاطے سے لے کے اس کو جیل میں ڈالنا صحیح کیسے ہو گیا؟ کل اگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو لیاقت باغ کے جلسے کے بعد روڈ کے اوپر گولیاں مار دینا، شہید کر دینا غلط تھا، تو آج ایک سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو وزیر آباد میں بدن میں 4 گولیاں مار کے جیل میں ڈالنا صحیح کیسے ہو گیا؟ کل کا صحیح آج غلط کیسے ہے، اور کل کا غلط آج صحیح کیسے ہے؟ اس کے لیے اس نقطے پہ آنا پڑے گا جو 16 فروری کو عمران خان صاحب نے اس ناچیز کے سامنے یہ بات کی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، سچ بولنا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا، یہی ہمارا آگے کا راستہ ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں بڑا آئین کی بات کرتی ہیں، بڑا جمہوریت کی بات کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی کسی جگہ سے گیٹ نمبر 4 سے سیٹی بچتی ہے آپ دوڑے دوڑے جاتے ہیں۔ آپ کو عہد کرنا ہوگا، آپ کو عہد کرنا ہوگا، کبھی کسی کا کاندھا استعمال کر کے ہم ایوان میں نہیں آئیں گے، کبھی کسی کی سپورٹ سے ہم اقتدار میں نہیں آئیں گے، اور یہ بھی پھر عہد کرنا ہوگا سیاسی جماعتوں کو کہ اقتدار میں آ کر اگر عوام کی طاقت سے بھی اقتدار میں آ گئے تو پھر پاکستان میں لوٹ کھسوٹ نہیں کرنی ہوگی۔ اگر آپ عوام کی طاقت سے اقتدار میں آتے ہیں اور پھر آپ ڈیلیور کرتے ہیں، ایمانداری سے حکومت کرتے ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی طاقتور آپ کو باہر نہیں کر سکتا، آپ کو آپ کا اپنا عمل پھر باہر کرتا ہے۔ اقتدار میں آ کے پھر آپ ان غریبوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اگر آج سیاسی قوتیں اس بات پہ متفق ہو جائیں تو ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے۔ پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ہماری ضرورت ہے ایک طاقتور فوج، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رہنا ہے، اس پہ ہم سب کو متفق ہونا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں اس کا بہت زیادہ احساس ہے کہ ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سیاسی قوتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کسی اور کی طرف نہ دیکھیں۔ کسی نہ کسی نے اس ملک میں حکومت کرنی ہے، کوئی نہ کوئی اس ملک میں آرمی چیف ہوگا، کوئی نہ کوئی جو اس ملک میں چیف جسٹس ہوگا۔ جب سب اپنے اپنے دائرے کے اندر رہیں گے تو یہ ملک آگے جائے گا، اور یہی عمران خان کے کہنے کا مقصد ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ۔
नवंबर को जो कॉल जनाब इमरान खान ने दी है, मेरे लिए अहम दिन इसलिए भी है कि कल भी मैंने अडियाला के बार ये बात की कि 24 नवंबर को ही मैं अपने पूरे खानदान के साथ इमरान खान के इस कारवान में शामिल हुआ। कोई हमारे पीछे नहीं आया था, हमने जाके पता किया था कि कहाँ तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप है जिनको हम कहें कि हम इमरान खान के काफिले में शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान को बनाने वाले खानदान जिन्ना के साथी, उनके वर्कर पीर मोहम्मद खान का पोता क्यों इमरान खान के साथ शामिल हुआ? मैं और मेरे जैसे बेशुमार लोग, ये हारून साहब खड़े हैं, बेशुमार लोग इमरान खान के साथ उसकी मोहब्बत में नहीं, इमरान खान साहब के साथ उसकी पाकिस्तान से कमिटमेंट की वजह से इमरान खान का साथ हमने दिया। मुझे शुक्र है, मुझे इस बात पर अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूं कि हम सुरखरू होंगे उस जहान में, अपने उन आबा व अजदाद के सामने, अपने उन बुजुर्गों के सामने जिन्होंने एक वक्त में सिखों के खिलाफ जहाद किया। अंग्रेजों के खिलाफ जब बंदूक उठाने का वक्त था, हमारे बुजुर्गों ने बंदूक उठाई खैबर पख्तूनख्वा में हाजी साहब तोरंगज़ई के साथ इकट्ठे मिलकर अंग्रेज के खिलाफ। और जब जमहूरियत से, वोट की ताकत से पाकिस्तान बनाने का वक्त आया तो हम फिर जिन्ना के साथ, कायद आज़म के साथ हम शरीक हुए। मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। आप सबको भी होना चाहिए जो इस वक्त पाकिस्तान बचाने के लिए इमरान खान के साथ है, कि अगर हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था तो उनके पोते और नवासे आज पाकिस्तान बचाने के लिए एक मलंग आदमी, एक दरवेश के साथ हैं। आज हमारी यही इस्तदा है। पूरी मेरी इस बात का हासिल वसूल यह है कि 24 को जो हमारा एहतजाज है, धरना है, जो भी आप उसको नाम दे, पुरअमन, उसका पहला नुक्ता ही आईन और कानून की हुक्मरानी है। अगर आईन और कानून की हुक्मरानी होगी तो मैं क्या चीज हूं? जिनकी पैरों की हम खाक हैं। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले बहुत कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए कानून और होता था। तो तहरीक इंसाफ की सारी जदोजहदी रूल ऑफ लॉ की है। हमारी जदोजहदी एक रूल ऑफ लॉ की है। एक ताकतवर सुप्रीम कोर्ट हो, एक मजबूत तरीन चीफ जस्टिस हो जो जवाब दे भी हो, मुत्तक़िल अनान ना हो, और हर कोई अपना अपना काम करे, मुल्क आइन के मुताबिक चले और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट पड़े, और एस्टैब्लिशमेंट अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करें। और इमरान खान ने बारहा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। तो फौज पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए ये ऐसी ही जरूरत है जिस तरह एक बदन के लिए रूह की जरूरत है। लेकिन उनका अपना एक काम है जो कायद आज़म ने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात की थी स्टाफ कॉलेज में स्पीच करते वक्त, कि पॉलिसीज सिविलियंस बनाएंगे और बॉर्डर्स की हिफाजत हमारे इदारे करेंगे, और जब सब अपना अपना काम करेंगे तो कोई इख्तलाफ नहीं होगा। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है। बहुत लड़ लिया, बहुत मर लिया, आपस में लड़ लिया, सब कुछ कर लिया, अवाम से नहीं जीत सके। अवाम के दिलों से न भुट्टो को निकाला जा सका, न अवाम के दिलों से फातिमा जिन्ना को निकाला जा सका था, और न अवाम के दिलों से इमरान खान साहब को निकाला जा सका। लड़ने का वक्त नहीं, 24 को हम निकल रहे हैं, उससे पहले भी मौका है। इमरान खान साहब ने, जब मैंने पूछा कि अगर कोई बात करना चाहता है तो किससे करे, उन्होंने कहा मुझसे डायरेक्ट बात की जाए। तो पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए मैं समझता हूं कि वक्त है, इस वक्त से फायदा उठाएं। गुफ्तगू से बड़े बड़े मसले हल होते हैं, टेबल पे बैठ के बड़े बड़े मसले हल होते हैं। और एक बार फिर हम क्या और मैं क्या और इमरान खान क्या, जिनकी पैरों की हम खाक हैं, सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिसाल है सुलह हुदैबिया की। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मसाइल का हल गुफ्तगू में है। अगर वो नहीं होगी तो फिर तो हम एहतजाज में तो निकल रहे हैं, वो हमारा काम है। लेकिन इस वक्त हमारे चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को बैरूनी अंदरूनी चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान अगयार की आंखों में एक आंख नहीं भाता, ना उनको हमारी न्यूक्लियर एसेट से एक आंख भाती है, ना एक इस्लामी रियासत एक आंख भाती है। आप ये देख रहे हैं मुल्क के अंदर कितने चैलेंजेस हैं। सिक्योरिटी के मसाइल हैं, मईशत कमजोर है, गरीब बेहाल है, महंगाई से बुरा हाल है। आपका नौजवान, उसकी आंखों से उम्मीदें छिन चुकी हैं। पाकिस्तान का नौजवान किसी भी सूरत में पाकिस्तान से बाहर निकलने में आफियत समझता है। वो पाकिस्तान which was supposed to be bastion of peace and hope for your young generation, आज आपका नौजवान पाकिस्तान से निकलने में आफियत समझता है, उसको यहाँ होप नजर नहीं आती। आओ अपने नौजवान को उसकी आंखों की उम्मीद वापस दिलाएं,
आओ पाकिस्तान में लोगों का यकीन वापस बहाल कराएं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, यहाँ मईशत बेहतर हो, यहाँ ज़राअत बेहतर हो, यहाँ इंडस्ट्रीज लगे, यहाँ महंगाई कम हो, यहाँ रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ गरीब का बेटा भी कभी इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन सके, गरीब का बेटा भी कभी और बेटी कभी इस मुल्क की वज़ीर आला बन सके। ये पाकिस्तान ना अशराफिया ने बनाया था, ना अशराफिया के लिए है। कायद आज़म भी एक मिडिल क्लास आदमी था, कलम का मजदूर था, हम भी कलम के मजदूर हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हम भी पाकिस्तान को बनाने वाले हैं, हम ही पाकिस्तान को बचाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अभी आपने ये कहा कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुज़ाकरात मेरे से हों। इससे पहले खान साहब ने ये कहा था कि जो भी बात होगी वो 24 के बाद हम जब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद मुज़ाकरात की एक कमेटी बनाई जाएगी, उनके साथ होंगे। अब ये कमेटी वाला फिक्रा जो है वो साइड पे हो गया, क्या डायरेक्ट खान साहब से बात होगी, ये क्या होगा, इधर अभी बता दें। 24 से पहले जाहिर है अगर कोई बात करना चाहता है, कोई भी बात करना चाहता है, वो इमरान खान साहब उनसे डायरेक्ट बात करेगा। मैंने पूछा था, जिस पे उन्होंने बताया कि बिल्कुल मेरे से आप बात करें। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं किया, लेकिन अगर कोई मीनिंगफुल बात नहीं होती तो हमारी तो तैयारियां मुकम्मल है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित, हर जगह से पाकिस्तानीज जो हैं इंशाअल्लाह वो उस दिन इस्लामाबाद आएंगे और पुरअमन बैठेंगे और अपने इन्हीं 3 बुनियादी मुतालबों का कि असीरान की रहाई, आईन और कानून की हकमरानी और मैंडेट की वापसी के लिए हम पुरअमन बैठे रहेंगे। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू साथ चलती रहनी चाहिए। इस एहतजाज के एंड में भी होनी है, एक दिन होनी है या आज हो रही है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं है कि क्या कहीं गुफ्तगू या मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मसाइल का हल गुफ्तगू में है। अगर आप गुफ्तगू की टेबल पर नहीं आएंगे, मुज़ाकरात आप गुफ्तगू से मसाइल हल नहीं करेंगे, तो फिर एक सियासी जमात के पास सबसे बड़ा मैदान वो अवाम का मैदान है, वो रोड है, वो एहतजाज है, जिसकी तरफ हम चल पड़े हैं। आज एक अहम इजलास होने जा रहा है, उससे पहले एक डेला जेल के अंदर एक अहम मुलाकात हुई, क्या कोई पैगाम लेके आए गंडापुर साहब? गंडापुर साहब अपनी बात खुद करेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि गंडापुर साहब ने अपने लीडर से वफा की है और मुश्किल हालात में अपने लीडर के साथ खड़ा रहा है। मैं खुश हूं कि इमरान खान साहब के पुराने साथियों में से कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने लीडर के साथ मजबूत खड़े। अली मोहम्मद खान साहब, एक आखिरी सवाल ले लीजिएगा। आपने कल भी गुफ्तगू करते हुए 2-3 जुमले बोले थे कि अब भी वक्त है इमरान खान को बाहर निकालें और बनी गाला जाने दें। दूसरा, आपने अभी भी कहा कि बात होनी चाहिए, मुफाहमत की तरफ आप लेकर शायद जाना चाहते हैं, आपकी गुफ्तगू से ये तासुर जा रहा है, तो आप किसको मैसेज दे रहे हैं, एक तो ये बता दीजिए। दूसरा, जो बातचीत चल रही है जिसकी खबरें इस वक्त हैं, क्या वाकई कोई ऑफर, कोई बातचीत इस वक्त चल रही है कि आप ही कह रहे हैं कि इमरान खान को निकालें और बनी गाला जाने दें? देखिए, ये बात खान की नहीं, ये बात अली मोहम्मद की है। मैं कारकुन हूँ तहरीक इंसाफ का, लेकिन साथ में पाकिस्तानी भी हूँ। मैं बतौर पाकिस्तानी ये देखता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानियों में बहुत बेचैनी है और उनका दिल इमरान खान साहब के साथ है। वो अपने लीडर को बाहर देखना चाहते हैं। मसाइल का हल आपको अल्टीमेटली टेबल पे जो है वो निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इमरान खान साहब को, जो कौम का लीडर है, उसको बाहर निकालें, उससे आप बात करें। मुल्क के आगे जाने के लिए आप डिस्कशन करें कि मैंडेट का क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, ये 26वीं आईनी तरमीम में जो आपने सारा कर डाला है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को आपने कमज़ोर कर दिया। ऐसे मुल्क थोड़ी चलते हैं। उसके साथ साथ जो फासले पैदा हो गए हैं अवाम में और इदारों में, उन फासलों को ख़त्म होना चाहिए। हमारे बीच में जो फासले हैं उससे दुश्मन फ़ायदा उठाता है और ये फासले एक आदमी ख़त्म कर सकता है, वो है इमरान खान साहब। शुक्रिया जी।